विमेन एम्पावरमेंट क्या होता है? प्रमोशन ऑफ वुमेन्स सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, देयर एबिलिटी टू डिटरमिन देयर ओन चॉइस एंड देयर राइट टू इन्फ्लुएंस सोशल चेंज फॉर देमसेल्व्स एंड ऑल्सो फॉर अदर्स। तो ये चीज आप याद करेंगे, रट लेंगे, जब भी विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात होगी इस डेफिनेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ विमेन से रिलेटेड जो है सोसाइटी में, समाज में चेंज लाने के लिए देयर हैव टू बी सम काइंड ऑफ अ मूवमेंट इन्वॉल्व। व्हाई? बिकॉज वी जनरली आर कंट्री वेयर movement, whether it be for socio-religious reform, whether it be for economic reforms, whether it be for freedom struggle, whether it be for political reforms, whatever objectives that we have, whether it be for land reforms, whether it is for agricultural reforms, in most of these scenarios we have seen the aspect of movements being very, very important. Movements are something that have led to a lot of success in all these scenarios in our country. It can also be, you can also include it into this environment led movements. You can also talk about backward class movement या backward caste movement. ठीक है? So all these objectives over the years in our country, one big instrument that has led to these changes is movement, आंदोलन। तो मूवमेंट होता क्या है? मूवमेंट एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट होता है। सबसे पहले अगर किसी जगह पे प्रदर्शन करने के लिए भीड़ इकट्ठी की जाती है तो उसे मूवमेंट नहीं कह सकते, उसे प्रोटेस्ट या एजिटेशन कह सकते हैं। तो जब एक भीड़ एक जगह पे एकत्रित होती है, कोई स्पेसिफिक डिमांड रखती है, तो उसे मूवमेंट नहीं कहा जाता है। मूवमेंट एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट होता है। इस ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट में ग्रुप का इन्वॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज वेरी रेयर दैट अ मूवमेंट कैन बी स्टार्टेड, कैरिड ऑन एंड रीच टू इट्स कंक्लूजन बाय सिंगल पर्सन। ऐसा बहुत कम देखा जाता है क्योंकि मूवमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, एक कलेक्टिव एक्शन है। इसीलिए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ऑर्गेनाइज्ड इन देयर एफर्ट, where their objective can be to bring about a change or to resist a change। दोनों तरफ मूवमेंट चल सकता है ना। या तो मूवमेंट ये कह सकता है कि हम समाज में हो रहे बदलाव को रोकना चाहते हैं, समाज का जो मॉरल ढांचा है, रिलीजियस ढांचा है, उसको चेंज करने की बहुत ज्यादा कोशिशें हो रही है, अलग अलग ताकतों से हम उसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं। दैट इज ऑल्सो अ मूवमेंट। एंड if you want to bring about a change in the society, that is also a movement। तो विमेन मूवमेंट इसी सोशल मूवमेंट का एक सब कैटेगरी है। विमेन मूवमेंट इस सोशल मूवमेंट का एक सब कैटेगरी है। और भारत के इतिहास में विमेन मूवमेंट जो है वो 3 फेजेस में आता है। यहां पे फेज 1 जो है वो मैं आपको लिख के बताऊंगा, ठीक है? आप अपने नोट्स में ऐड कर देना। फेज 1 दैट इज the pre-Gandhian phase, or you can say the socio-religious reform movement, or as part of socio-religious reforms. Now India's history is beset with examples where the position of women has not been very enviable or a very particularly good position in the society. Whether it is ancient or medieval India, the position of women has either remained a subjugated one or it has deteriorated. Means there have been very rare phases of our history where the position of women has been egalitarian. I'm not blaming one particular culture or society. The entire society has been somewhat in manner of how you deal with women, there has been lack of egalitarianism, lack of certain level of compassion, lack of certain level of equal treatment. And there are numerous examples in several of the literary works,
several of the historical accounts which point out to certain issues that women in modern society will not face. What those issues were there? So if I talk about the 19th century or the 18th century, so early part of the 20th century, the major issues were, number one, prevalence of sati pratha in certain pockets of the country. It's not something that is a widespread practice. Sati pratha was not something that was a widespread practice throughout the country, but still it was prevalent. As far as women are concerned in Islam as well, there was the parda system. Okay, that probably was not enforced in a manner or was not in a consensual manner. It was enforced by the religious clergy. Third set of problem was child marriage, which was common across the religious beliefs. Third set of problems that women faced was child marriage. Fourth set of problem was lack of access to education or women education not given priority. Women education not given much priority. Fifth problem or fifth issue that women were probably facing was widow remarriage, or the problem or issue of widow remarriage. So these are some of the issues that women were facing in the 19th and certain parts of the 18th century in that particular time period. And in response to these conditions, the first phase of Indian women's movement started. The problem or we have seen, you will study in history in the chapter on socio-religious reform movement, that there were several reformers who tried to improve the situation of women. In Bengal, there was Raja Ram Mohan Roy. In Maharashtra, there was M.G. Ranade and D.K. Karve. Okay? And in Tamil Nadu, there were other, Madras also, there were other people. In several parts of the country, in Bengal also, you'll find Ishwar Chandra Vidyasagar, who worked upon these issues and who tried to improve the situation of women. And the idea was that after having undergone Western education, after having read the concepts of humanism, where the dignity of human is the most ultimate objective, even greater than reverence to any religious belief. I'll repeat, ह्यूमैनिज्म की जो थ्योरी जो पढ़ते हैं 19वीं शताब्दी में भारत के रिच मिडिल क्लास, रिच अपर क्लास वाले लोग, जमींदारों के बेटे, ठीक है, प्रोफेशनल्स के बेटे, वो जब पढ़ते हैं वो देखते हैं कि भाई समाज में जो है इक्वालिटी लाने के लिए हमें ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिटी, ह्यूमनिज्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए एज कंपेयर टू थीइज्म और वर्शिप ऑफ और फॉलोइंग ऑफ रिलीजियस डॉगमा. ठीक है, सो ये जो इशू है इसको हाईलाइट करते हुए बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स डेवलप होते हैं. They come from generally affluent or rich families who have seen around them these type of issues. Yes, another issue that has been aspect is added is infanticide or feticide. Yes, that is also true. ठीक है, बाकी but major focus was on this in the 19th century, because right now we are not talking about democracy. जब ब्रिटिश रूल ही इस प्रकार से चल रहा है, अभी हम डेमोक्रेटिक राइट्स, वोटिंग राइट्स, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इस प्रकार के इश्यूज नहीं डिस्कस करेंगे 19वीं शताब्दी में. जो ये पहले बेसिक इश्यूज हैं इनके ऊपर बात होगी, चर्चा होगी. तो यही चीज जो है पहले फेज ऑफ सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में नजर आती है. जो आप ब्रह्म समाज हो, चाहे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के इनिशिएटिव हो, चाहे वो डी.के. कार्वे हो, चाहे वो एम.जी. रानडे एंड उनके समर्थक हो, ये सभी लोग यही पॉइंट रखने की कोशिश करते हैं कि दीज आर एक्चुअली सोशल इविल्स. These things that we are talking about are actually social evils, and they use the legal mechanism to enforce these reforms. For example, they in 1829 sati is banned by the law that is passed under Viceroy William Bentinck.
Then infanticide is also banned in 1848. Then you see Widow Remarriage Act is passed in 1856. So with the passing of time, legislative efforts are taken to change certain scenario. For example, Age of Consent Act. Age of Consent Act in 1891, then in 1929 also known as Sharda Act, and then in 1966 again the age of consent as well as the marriage age was increased. Having said that, what we need to understand is that these issues were first of all not taken up by women themselves. The problem in initial phase was that the leadership was not from amongst the women. The leadership was male dominated, because even if you want to remove these aspects, still we are not talking about 100% equality or egalitarianism in the society. एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी किसी भी अच्छे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म की कुछ निशानियां होती हैं, लेकिन साथ ही साथ क्लैरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारे से बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेरीज करते हैं अबाउट द डिफरेंट कोर्सेज दैट वी आर ऑफरिंग। तो बेसिकली मैं उनको जल्दी से हाईलाइट कर देता हूँ कि डिफरेंट कोर्सेज में क्या चीज़ें हम ऑफर कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें, 3 प्रकार के कोर्स हैं। एक है जो एंटायर जनरल स्टडीज़ है और विद और विदाउट आंसर इवैल्यूएशन, और एक हमारा सिम्बायोसिस बैच जो मंडे से स्टार्ट होने वाला है। और इस पर्टिकुलर बैच के अंदर जो आपको कंपोनेंट्स मिलने वाले हैं वो है कंप्लीट जनरल स्टडीज़ का कंटेंट, लाइव क्लासेस के थ्रू, और लाइव करंट अफेयर्स की मंथली क्लासेस आपकी रहेंगी। ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट्स के लाइव मंथली करंट अफेयर्स और सभी सब्जेक्ट्स का लाइव कंटेंट आपको मिलने वाला है। प्रीलिम्स के एमसीक्यूज साथ ही साथ क्लास के बाद या क्लास के अंदर भी डिस्कस किए जाते हैं एंड आपसे शेयर भी किए जाते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। देन मेंस क्वेश्चंस और वीडियो सॉल्यूशंस, उसके मेंस आंसर्स। इवैल्यूएशन ऑब्वियसली विदाउट इवैल्यूएशन में आपको नहीं मिलने वाला है, बट इवैल्यूएशन के साथ आपको सेकंड और थर्ड जो हमारे कोर्स है उसमें मिलेगा। एसए का जो कंटेंट रहेगा वो भी, और एसए इवैल्यूएशन भी आपको मिलेगी इस सिम्बायोसिस बैच के अंदर। ठीक है, तो प्लीज थिंक दैट दिस इज अ होलिस्टिक डेवलपमेंट इन द केस ऑफ, अगर आप जीएस के लिए प्रिपेयर करते हैं उसमें आपके जितने भी स्टेजेस आते हैं उन सभी स्टेजेस के ये कवरेज दे रहा है आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स के लिए सेपरेट है, मेंस के लिए सेपरेट है, इंटरव्यू के लिए सेपरेट है। एंटायर जो स्टेजेस हैं जिसमें आप जाएंगे उसके लिए ये होलिस्टिक प्रोग्राम है। टेस्ट सीरीज आपको सिम्बायोसिस बैच के अंदर मिलने वाली है। एंटायर प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा, और साथ ही साथ साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, हमारे जो एक्सपर्ट काउंसलर है वो अवेलेबल रहते हैं। ये एग्ज़ाम बहुत प्रेशर वाला एग्ज़ाम है, बहुत एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करनी होती हैं, अलग अलग प्रकार के स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स होते हैं, उसका हम भली भांति ध्यान रखते हैं। देन मेंटोरशिप की बात आती है, और मेंटोरशिप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स, मंथली टारगेट्स एंड ओवरऑल गाइडेंस जो आपको चाहिए, प्लस आपके जो सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स। तो दोनों लेवल की मेंटोरशिप आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट्स प्लस फैकल्टी के थ्रू भी मिलेगी यहाँ। और ऑफ कोर्स इफ यू गेट इनटू द इंटरव्यू स्टेज, विच आई एम वेरी श्योर यू विल, आफ्टर हैविंग गॉन थ्रू ऑल दी स्टेजेस, यू विल ऑल्सो गेट गाइडेंस इन द इंटरव्यू प्रोग्राम। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि ये जो सिम्बायोसिस बैच है, दिस इज लॉन्चिंग एंड दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, और आपकी क्लासेस यहाँ पे शुरू होने वाली हैं। तो जस्ट टू गिव यू अ बिट ऑफ क्लैरिटी, ठीक है, ये जो डायग्राम है इससे कुछ क्लैरिटी आपको मिले कि व्हाट आर द ऑफरिंग्स दैट वी हैव। ठीक है, अदरवाइज जो हमारे यूट्यूब पे इनिशिएटिव्स हैं वो कंटिन्यूड चलते ही रहेंगे। ठीक है, प्रीमिक्स, फ्यू मिनट सीरीज एंड द डिफरेंट वीडियोस दैट वी ब्रिंग टुवर्ड्स यू, और आपका जो प्यार है, स्नेह है, हमें बहुत ज़्यादा उसकी सहायता है। तो YouTube पे भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।